مجھے نہیں معلوم کہ توراس کا کیا حال تھا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ جب آنکھ کھلی تو عجیب حلیہ نظر آیا۔ میرے بدن پر صرف ایک جانگیا تھا، مجھ سے تھوڑے فاصلے پر عین بھی اپنے بوسیدہ لباس میں پڑی ہوئی تھی۔ عقل ساتھ چھوڑ چکی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ ہلنے جلنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں۔ گردن گھمائی تو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ توراس بھی اسی طرح ایک جانگیے میں ملبوس اوندھا پڑا تھا۔ ابے او کالے دیوتا، میں نے اسے آواز دی۔ کیا بات ہے بھائی صاحب؟ توراس کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سیدھا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابے کیا تم بھی میری طرح الٹے پڑے ہوئے ہو؟ نہیں، میں سیدھا ہوں۔ تو پھر مجھے سیدھا ہونے کا طریقہ بتاؤ۔ کیوں، تم خود سیدھے نہیں ہو سکتے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو کھول لو نا۔ کیسے کھول لوں؟ توراس بے بسی سے بولا۔ کیا تمہاری قوتیں بھی فنا ہو چکی ہیں؟ یہاں بھی قوت سے کام لینا پڑے گا، لعنت ہے۔ مگر تمہاری دنیا کی یہ خاطر مدارت پسند نہیں آئی مجھے۔ ابھی یہ تو افریقہ کے اندرونی علاقوں سے بھی انوکھا طریقہ ہے مہمان نوازی کا۔ توراس نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ گدھا توراس اسے مہمان نوازی سمجھ رہا تھا۔ سیدھے تو ہو جاؤ پیارے بھائی، میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا، اور توراس کسی الٹے پڑے ہوئے لال بیگ کی طرح ہاتھ اور پاؤں ہلا کر ناچنے لگا۔ بڑی مشکل سے وہ سیدھا ہو سکا۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور منہ پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ ابے کیسے لگ رہے ہو؟ وہ بدستور ہنستا ہوا بولا۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے کالی کھجور؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس نے شاید پہلی بار اپنے آپ پر غور کیا، اور اس کی ہنسی ایک دم بند ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ان کو دیکھا جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ پھر اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ ارے باپ رے! کیوں، اب کیا ہوا؟ ابے میرے کپڑے کہاں گئے؟ جہاں میرے، میں نے کہہ لگایا۔ ہنس رہے ہو بے شرم کہیں کے؟ لونڈیا کے سامنے اس حال میں پڑے ہو اور ہنس رہے ہو۔ شکر ہے لونڈیا بھی ہوش میں نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہوش میں آ جائے گی۔ پھر میں کیا کروں؟ مگر کیا مہمان نوازی کا یہ عجیب طریقہ نہیں ہے؟ تمہارے ہاں کب سے رائج ہے؟ گدھے دیوتا، تمہارے خیال میں یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی کیا؟ مسٹر گیلنٹ بڑے نیک نفس انسان ہیں، سیاہ روحیں انہیں خوش رکھیں، توراس بولا۔ سیاہ روحوں کی اولاد ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ دھوکا؟ توراس نے تعجب سے کہا۔ ہاں دھوکا۔ ہمیں کافی میں بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی۔ کافی؟ وہ مشروب جو تم نے ہمارے ساتھ پیا۔ لیکن تعجب ہے توراس کہ تم بھی اسے پی کر بے ہوش ہو گئے۔ ابھی تو کیا تمہارے خیال میں میں ہر وقت دیوتا رہتا ہوں؟ میں تمہاری طرح ہی رہنا پسند کرتا ہوں، سمجھے؟ بس خاص حالات میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک وہ بری طرح لڑکنے لگا۔ کیا بات ہے توراس؟ میں نے تعجب سے کہا۔ او بے وقوف آدمی، پتھر کہاں ہے؟ توراس نے کہا۔ اب وہ رک گیا تھا اور اچانک میرے اوپر مایوسی طاری ہو گئی۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر گھٹی گھٹی آواز میں بولا، پتھر تو کپڑوں میں ہی تھا توراس۔ مارے گئے دونوں۔ ہائے، میں کسی کمبخت کے ہاتھ میں ہوں، توراس کراہنے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور مسٹر گیلنٹ اپنی بیوی کے ساتھ اندر آ گئے۔ ہوش میں آ گئے تم لوگ؟ انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ ہاں مسٹر گیلنٹ۔ مگر ہمارے ساتھ یہ سلوک، آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ سلوک کے بچے، تم افریقہ کے اندرونی حصے سے آ رہے ہو یا کسی بھٹیار خانے سے؟ مسٹر گیلنٹ بدستور غصیلے لہجے میں بولے۔ کیوں مسٹر گیلنٹ؟ میں نے پوچھا۔ گدھے کے بچوں، تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ ایکسیلنٹ مسٹر گیلنٹ، ذرا میرے باپ کو ایک بار اور گدھا کہیں، میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں۔ توراس خوش ہو کر بولا۔ مار مار کر کھال اتار دوں گا تم دونوں کی۔ گیلنٹ غصے سے چیخا۔ لیکن ہمارا قصور مسٹر گیلنٹ؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ افریقہ کے علاقوں میں سفر کرنے والے عموماً ہیروں، سونے یا ہاتھی دانت کی تلاش میں جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے ہیں، لیکن تم بالکل ہی کلاش ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ لیکن مسٹر گیلنٹ تو جیسے گدھے ہیں، کان کھول کر سنو۔ ہم افریقہ سے آنے والوں کی خاطر مدارت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ لاتے ہیں ہم اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لیں، مگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں نکلا، اور کپڑے تم نے کس مزے سے پہن لیے۔ تو آپ نے ہمارے کپڑے بھی اتار لیے، مفت کے تو نہیں تھے۔ لیکن آپ نے ہمارے ہاتھ کیوں باندھ رکھے ہیں مسٹر گیلنٹ؟ ابھی تو کوڑے لگواؤں گا تمہارے، اتنا پٹواؤں گا کہ کھال اتر جائے۔ اب بتاؤ کہ میں تم سے کیا وصول کروں؟ کیا یہ بدنما پتھر جسے تم نے بڑی احتیاط سے رکھا تھا؟ مسٹر گیلنٹ نے مٹھی میں دبا ہوا پتھر دیوار پر کھینچ مارا۔ توراس کے حلق سے ایک کراہ نکل گئی۔ اس نے اس انداز میں آنکھیں بند کر لی جیسے اس کے سخت چوٹ لگی ہو، لیکن پتھر دیوار سے ٹکرا کر میرے پاس آ گیا اور میں نے غیر محسوس انداز میں سرک کر اسے اپنی بندھی ہوئی مٹھی میں دبا لیا۔ ابھی میرے بیٹے آنے والے ہیں، وہ تم سے بات کریں گے۔ تو تمہارے بیٹے بھی ہیں؟
अभी पता चल जाएगा, गैलेंट ने कहा और गुस्से से पांव पटकता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने गहरी सांस ली थी और फिर मैंने पत्थर चेहरे के करीब करके कहा, तोरास आंखें खोलो। और तोरास ने आंखें खोल दी। मेरे हाथ खोल दो, मैंने कहा, और तोरास ने मेरे बंधे हुए हाथों को देखा। दूसरे लम्हे रस्सियां तड़ तड़ करके टूट गईं और मैं कलाइयां मसलने लगा। क्या तुम्हें बहुत चोट आई है? बताऊंगा, जरा ठीक हो जाऊं फिर बताऊंगा। तुम्हें भी इसी तरह उठाकर दीवार से ना दे मारा तो तोरास नाम नहीं। यार अब तुम ही बताओ मेरा क्या कसूर था? मैंने कहा, तुम भी मेरी तरह बेवकूफ़ हो। नहीं, मगर मुझे इस बूढ़े की नीयत के बारे में तो नहीं मालूम था। तोरास, मेरी दुनिया हसीन जरूर है मगर बड़ी मक्कार है। अब देखो इस बूढ़े आदमी को, इसने यहाँ बैठकर लूट मार का क्या जाल फैलाया है। ठीक कर दूंगा इसे भी, और अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। अबे तुम किस मर्ज की दवा हो आखिर? खुद अपने मर्ज का इलाज नहीं कर सका आज तक तोरास, मैं अपने आप को दवा कब कहता हूँ? फिर वही यतीमी की बातें शुरू कर दी। अब मेरे हाथ तो खोल लो या यूं ही बंदा पड़ा रहूं? तोरास ने कहा और मैं अपनी जगह से तोरास के करीब पहुंच गया। फिर मैंने उसके हाथ खोल दिए और तोरास भी बुरी तरह हाथ मसलने लगा। उसी वक्त एन ने कराह कर करवट बदली और तोरास उछल पड़ा। दूसरे लम्हे वो कोनों खुदरों में छुपने की कोशिश करने लगा। एन जाग गई थी। वह थोड़ी देर तक हैरान निगाहों से चारों तरफ देखती रही और फिर उछल पड़ी। उसके हाथ भी बंधे हुए थे। तब उसके हलक से भी एक आवाज़ निकल गई, लेकिन दूसरे लम्हे मैं उसके पास पहुंच गया। डरो नहीं एन, मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ, मैंने कहा और एन ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। ओह कासिम। हाँ एन, घबराने की बात नहीं। मैंने उसके नज़दीक बैठकर उसके हाथ खोल दिए। ये क्या हुआ कासिम? घपला? क्या मतलब? हमारी दुनिया में ये पहला इस्तकबाल, इस दुनिया की यही पहचान है कि हर कदम पर मक्कारी और अय्यारी के जाल बिछे हैं और इंसान को कदम कदम पर मोहतात रहना पड़ता है। लेकिन हुआ क्या? और तुम्हारा लिबास कहाँ गया जहाँ से आया था? ओह, लेकिन मिस्टर गैलेंट एक मुहज्जब लुटेरी हैं। उन्होंने इस उम्मीद पर खातर मदारत की थी कि हमारे पास खजाना या हीरे वगैरह पोशीदा होंगे जो हम अफ्रीका से लाए होंगे, लेकिन फिर कुछ ना मिलने पर उन्होंने दिए हुए लिबास छीन लिए। खुदा की पनाह, तो कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। ओह, एन पेशानी मसलने लगी। देर तक खामोश रहने के बाद वो एकदम चौंक पड़ी। अरे हाँ, वो तुम्हारा साथी कहाँ है? वो भी अपनी इज्जत छुपाए एक कोने में खड़ा है। मैंने उस तरफ इशारा किया जिस तरफ तोरास गया था, लेकिन फिर मैं खुद हैरत ज़दा रह गया। तोरास वहाँ नहीं था, कहीं जा चुका था। मैंने गहरी सांस ली। मेरा ख्याल है वो कमरे से कहीं चला गया, मैंने कहा और चंद साथ के बाद फिर दरवाज़ा खुला। लेकिन इस बार 4 जवान आदमी कमरे में दाखिल हो गए और उनके पीछे पीछे मिस्टर गैलेंट और उनकी बीवी थी। मिस्टर गैलेंट के चेहरे पर हकारत आमेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। तो ये हैं वो कल्लाश लोग जिन्होंने हमारा वक्त ज़ाया किया, मिस्टर गैलेंट ने कहा। ओहो, इनमें तो एक खातून भी हैं। हाँ, लेकिन ये तो 3 अफराद थे, दूसरा जवान बोला। हाँ, तीसरा कहाँ गया? वो मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं था, निकल गया, मैंने हंसते हुए कहा और वो खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगे। कैसे निकल गया? दरवाज़ा तो बंद था, मिस्टर गैलेंट ने शदीद गुस्से से कहा और मैंने शाने उचका दिए। वो कहाँ गया? बोलो, कैसे निकला वो? मैंने कहा ना मिस्टर गैलेंट, वो हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं था, निकल गया। मगर कहाँ से? गैलेंट ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। और फिर एक नौजवान ने आहिस्ता से कुछ कहा। नौजवान बाहर निकल गया। 3 आदमी अब कमरे में मौजूद थे। तब वो जवान एन की तरफ बढ़ा जिसने एन के बारे में कुछ कहा था। वो हैट उतार कर झुकते हुए बोला, मुअज़्ज़ज़ खातून की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। एन खुश्क निगाहों पर जुबान फेर रही थी। वो इस मक्कार शख्स की आंखों में देख रही थी। इन आंखों में हवस नुमाया थी। मुझे अफसोस है खातून कि आपको हमारा मेहमान बनकर तकलीफ उठाना पड़ी। दरअसल डैडी की आदत बहुत ही ख़राब है। क्यों डैडी? कि आप नौजवान लड़कियों की पजीराई नहीं करते। बकवास मत करो, मुझे फजूल बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, गैलेंट कुर्राया। नहीं नहीं डैडी, आप तो शक्म शेर हैं, सारी उम्र लड़कियों से खेलते रहे, लेकिन हमारा भी तो कुछ ख्याल करें। आइए मुअज़्ज़ज़ खातून, मेरे साथ चलें। ये चीथड़े आपके लिबास पर अच्छे नहीं लगते। आइए मैं आपको नया लिबास दूँ। उस शख्स ने इनका बाजू पकड़ लिया और गैलेंट मेरी तरफ बढ़ा। तुम बताओ तुम्हारा साथी कहाँ है, वरना मैं तुम्हारे बदन की सारी खाल उतार दूंगा। डैडी, ये नाइंसाफ़ी है। अचानक दूसरा नौजवान जो अभी तक खामोश था गैलेंट की तरफ रुख करके बोला, क्या मतलब? अब उसे देखो, वो लड़की को लेकर बाहर जा रहा है, जैसे हम तो जवान ही नहीं हुए। दूसरे आदमी ने कहा, बेवकूफ़ के बच्चे, तुम इस झगड़े में पड़े रहोगे। अरे मैं कहता हूँ कि इसके साथी को देखो, वो कहाँ गया? ओफो, मर्द ही होगा ना, वो भी निकल गया होगा कहीं भी, और निकल जाने दे डैडी उसे, हमें क्या करना है भला? दूसरे नौजवान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा और गैलेंट उसे गुस्सीली नज़रों से घूरने लगा। अरे अरे, तुम लोग लड़ने क्यों लगे? काम की बात करो, काम की। औरत ने दरमियान में मदाखलत करते हुए कहा, देखो ना मम्मी, डैडी ने कितनी नाइंसाफ़ी से काम लिया है, क्या वो उसको रोक नहीं सकते? अब भला आप ही बताइए, क्या वही जवान है?
वहाँ वो पास्कल लड़की को ले गया और मुझसे उस अहमक की बात कर रही हैं। चलो चलो तुम भी बाहर चलो, बल्कि ठहरो, इसे भी बाहर ले चलो। जब तक इसका साथी ना मिल जाए तुम्हें आपस में उलझने की ज़रूरत नहीं। और दोनों नौजवान बुरा समूह बनाकर उसे देखने लगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, उठो उठो, बाहर निकलो हमारे साथ। उन्होंने कहा और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिए। मैंने एक गहरी सांस ली और दोनों के साथ बाहर निकल आया। पास्कल एन का बाजू पकड़कर उसे तकरीबन घसीटता हुआ बाहर ले गया। अब मुझे कुछ न कुछ करना ही चाहिए, मैंने सोचा। वैसे स्याह पत्थर मेरे पास मौजूद था। चुनाचे उनके साथ चलते हुए मैंने आहिस्ता से पत्थर को अपनी गिरफ्त में लिया और कहा, ओ मरदूद, कहाँ मरा हुआ है? हाजिर हूं मगर सामने नहीं आऊंगा। उसकी आवाज़ मुझे अपने कान में सुनाई दी। क्यों? नंगे बदन में किसी के सामने आना पसंद नहीं करता। लड़की जा चुकी है, औरत तो है। तोरास की शर्मीली आवाज़ सुनाई दी। तोरास, वो इनको बुरे इरादे से ले गया है, उसकी ये मजाल। अरे किसी खूबसूरत लड़की के लिए बुरे इरादे हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अरे देखो, मैंने कहा। ना सिर्फ मैं देखता हूँ बल्कि अभी तुम्हें भी दिखाता हूँ, तोरास ने कहा और फिर उसकी आवाज़ सुनाई ना दी। मैं खामोश हो गया। चारों अफराद मुझे लिए हुए बाहर निकल आए। पांचवां तोरास की तलाश में गया था और छठा इनको ना जाने कहाँ ले गया। तुमने हाथ किस तरह खोले? गैलेंट ने पूछा। तुमने रस्सी ढीली बांधी थी, आसानी से खुल गई, मैंने जवाब दिया। बकवास करते हो। ओह डैडी, आप बूढ़े हो गई हैं, अब आपसे कुछ नहीं होता, हाथ ढीले ही बांधे होंगे। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो और इसे मारो। पास्कल को भी तो बुलाओ, उसी नौजवान ने कहा। और उसी वक्त पास्कल एक कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन अजीब सूरत हाल थी। वह जमीन से तकरीबन 2 फुट खला में मुअल्लिक था और उसके चेहरे पर सख्त अजियत के आसार थे। दोनों पांव लटके हुए थे और फिर यूं लगा जैसे उसे कोई लटकाए हुए ला रहा हो। मैं जानता था कि ये तोरास के अलावा और कोई नहीं। मैंने हैरत से उसे देखा। अरे तुम्हें क्या हुआ? बूढ़े गैलेंट ने पूछा और पास्कल पट से नीचे गिर पड़ा। मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ। पास्कल ने दहशत ज़्यादा चीख मारी और मुड़कर औरत से लिपट गया। पास्कल, मेरे बच्चे, कहाँ हो? क्या हुआ तुझे? औरत इस तरफ से चीखी और फिर लड़के की तरफ देखकर बोली, अरे लड़की कहाँ गई? क्या वो भी गायब हो गई? मैंने इस लालची बूढ़े से कहा था। औरत ने खूंखार निगाहों से गैलेंट की तरफ देखकर दांत पीसे। क्या कहा था मुझसे? कहा था ना कि घोड़ों पर इक्तफा करो और इन्हें जाने दो। अब बताओ क्या करोगे इनका? हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? औरत कांपते हुए पास्कल को देखकर बोली। अबे तुझे क्या हो गया? गैलेंट ने पूछा। किसी ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे उठा लिया डैडी। आह, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है। उठा लिया? मगर किसने? गैलेंट ने कहा और उसी वक्त उसका पेट पिचक गया। गैलेंट घबरा कर रह गया। किसी ने उसके सर पर जोरदार चपत मारी थी। कौन है? कौन है? गैलेंट के हलक से भर्राई हुई आवाज निकली और तड़ाक की आवाज के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि गैलेंट औंधे मुंह जमीन जा पड़ा। अरे क्या हो रहा है ये? क्या हुआ तुम सबको? औरत ने कहा और वो बिलबिला उठी। उसके सर के बाल खड़े हो गए थे। छोड़ छोड़ मेरे बाल, छोड़ इसे मरदूद। अरे कौन है? दोनों सूरमा ये सूरत हाल देखकर सरपट भागे। तोरास गैलेंट और उसकी बीवी के साथ पास्कल की मुरम्मत भी कर रहा था। वो दहशत से मरे जा रहे थे। मुआफ कर दो प्लीज, मुआफ कर दो, खुदा के लिए मुआफ कर दो, हाय मुआफ कर दो। गैलेंट चीख रहा था। तीसरा सूरमा इस सूरत हाल को देखकर वापिस नहीं आया। शायद दोनों ने खतरे से उसे आगाह कर दिया। तोरास ने उसकी अच्छी तरह पिटाई की और वो जमीन पर गिर पड़े। अब किसी में उठने की हिम्मत नहीं थी। हाँ डियर गैलेंट, मैंने गहरी सांस लेकर उसे मुखातिब किया। तुम्हें मालूम है कि हम लोग कल्लाश हैं। मुआफ़ कर दो, खुदा के लिए मुआफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम लोग अफ्रीका से पुरस्रार कुव्वतें लेकर आए हो। कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी? मैंने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कितने लोगों को लूटा है तुमने? बहुत सौ को। हमारा काम यही है। तब तो तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। मैं बोला। कहाँ, सब खर्च हो गया। ये मेरे लड़के बड़े बदमाश हैं। मैं कमाता हूँ और ये लुटा देते हैं। ये बुढ़ा फिर झूठ बोल रहा है। हमारे पास हज़ारों रुपए की करेंसी है, सोना है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, औरत ने बताया। अरे अरे, कुतिया की बच्ची, इसकी क्या ज़रूरत थी? गैलेंट दांत पीस कर बोला। कुतिया की बच्ची तुमसे ज़्यादा कलमंद है, वो मार खाना नहीं चाहती। चलो उठो, तुम्हें हमारी मदद करनी है। हमें उम्दा लिबास दो और जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी दे दो। आखिर हमें तवील सफ़र करना है, तुम यकीन करो, गैलेंट भर्राई हुई आवाज़ में बोला। और मैंने आगे बढ़कर उसकी कमर पर ठोक कर रसीद कर दी। उठते हो या? उठता हूँ। मरवा दिया, इस कुतिया की बच्ची ने मरवा दिया। हाय, बड़े घाटे के मेहमान है इस बार। अरे वो तीनों कहाँ मर गई? देखा तूने अपने बेटों को, हमें मुसीबत में छोड़कर भाग गई। गैलेंट कराता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम मुसीबतें खरीदते फिरोगे तो वो और क्या करेंगे? औरत ने साफ जवाब दिया। और बूढ़ा गैलेंट दांत पीसता हुआ आगे बढ़ने लगा। उस वक्त एन भी कमरे से निकल आई, लेकिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अब वो एक उम्दा लिबास में थी। उसके पीछे ही तोरास भी नमूदार हुआ। उसके बदन का लिबास भी बहुत उम्दा था।
शायद उनमें से किसी नौजवान का लिबास उसे मिल गया था। बगल में कुछ और कपड़े भी दबे हुए थे जो यकीनन वो मेरे लिए लाया होगा। बूढ़े गैलेंट ने उसे देखा और चौंक कर रुक गया। तुम वहां कैसे घुस गए थे? गैलेंट ने पूछा, लेकिन मैंने फिर उसकी गर्दन पर हाथ मार दिया। तुम इन फजूल बातों में मत पड़ो गैलेंट, जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करो। क्या कहा है तुमने इससे? तोरास ने मुझसे पूछा। भाई, हमें यहाँ से रवाना होने के लिए जाहिर है कुछ रकम की जरूरत भी होगी, और बड़े मियाँ ने काफी लोगों को लूटा है। बड़ी बी का कहना है कि इनके पास बेशुमार करेंसी और सोना है, तो उनमें से कुछ हमारा भी तो होना चाहिए। इब्तिदा हमने नहीं की, बल्कि इन्हीं लोगों ने की है और हमें इसी तरफ माल किया है। मैंने बूढ़े की गुद्दी पर हाथ मारकर उसे साथ चलने के लिए कहा और बूढ़ा आगे बढ़ने लगा। तुम ऐसा करो कासिम, पहले अपना लिबास बदलो, मैं इसके साथ जाता हूँ, बेफिक्र रहो, तोरास ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तोरास ने हाथ में लिए हुए कपड़े मेरी तरफ बढ़ा दिए। एन मेरे पास ही रुक गई थी। वो सख्त मुतहैयर नजर आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है कासिम? जो कुछ हो रहा है एन, वो बेहद दिलचस्प है। तुम यूं समझो कि अब हमारी मुसीबतों का दौर गुजर चुका है। वो तो ठीक है, लेकिन मामलात बेहद पुरस्रार हैं। क्यों? मैंने सवाल किया। इस दौरान मैं लिबास पहनता जा रहा था, बस अचानक ये अजीबोगरीब वाक़यात पेश आई। एन दिलचस्प लहजे में बोली, क्या? ये शख्स पास्कल बड़ा खूंखार और मक्कार किस्म का आदमी मालूम होता है। मुझे ज़बरदस्ती घसीटता हुआ वो एक कमरे में ले गया और फजूल बातें करने लगा। मैं बिलाशुबा कासिम बेहद परेशान हो गई थी। मैं समझ रही थी कि इसके चुंगल में फंस जाऊंगी, लेकिन फिर अचानक किसी ने पास्कल को ज़मीन से बुलंद कर दिया और बाहर ले गया। मैंने अपने अकब में देखा तो ये कपड़े रखे हुए थे जो मैं इस वक्त पहने हुए हूँ। मैंने कपड़े पहने और जब मैं बाहर आ रही थी तो मैंने तुम्हारे स्याफाम दोस्त को देखा। वो कोने में खड़ा था। मुझे तो बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। क्यों? अरे, मैंने इसके सामने अपना लिबास उतार कर दूसरा लिबास पहना था। एन ने झिंपे हुए लहजे में कहा और मैंने मायने के इस अंदाज में गर्दन हिलाई। तोरास अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता था। जाहिर है वो उस वक्त इस कमरे में छुपा हुआ होगा जब एन लिबास तब्दील कर रही होगी। तब मैंने एन को मुतमईन करने के लिए कहा, वो एक बेज़रर इंसान है। एन, तुम मुकम्मल तौर पर इत्मीनान रखो, वो कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, मगर वो है अजीबोगरीब। मुझे यूं लगता है जैसे वो अफ्रीका के इन पुरस्कार लोगों में से है जो जादूगर कहलाते हैं। कुछ ऐसी ही बात है, तुम उसके बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दो। मगर कासिम, वो हमें कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? एन ने खौफजदा लहजे में कहा। कभी नहीं एन, मुझे यकीन है, मैंने जवाब दिया और एन गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगी। मैंने लिबास पहन लिया था। चंद साथ के बाद तोरास उन दोनों को धक्के देता हुआ बाहर निकल गया। उसके हाथों में करेंसी नोटों की गड्डियां थीं और बूढ़ा गैलेंट आंसू बहा रहा था। देखो, ये शख्स मुझे गधा समझता है। इन बेहकीकत कागज के टुकड़ों को ये बहुत कीमती बताता है। भला ये किस मसरफ के? और सोना? मैंने पूछा। अरे, सोना लेकर तुम क्या करोगे? कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ दो। हाय, मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई। कभी कभी लुटेरे भी लुट जाते हैं गैलेंट। मगर कासिम, क्या ये हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहा? तोरास बोला। क्यों? इन कागज़ों का तुम क्या करोगे? बड़े काम के होते हैं ये कागज़। मगर बड़े मियाँ, तुम ये करेंसी कहाँ से हासिल करते हो? लूटते तो तुम हीरे और सोना हो। मैंने पूछा। मैं कहती हूँ इन बदरूहों से झूठ मत बोलो, औरत ने कहा और गैलेंट ने चिल्लाहट में एक थप्पड़ उसे रसीद कर दिया। औरत चीख चीख कर रोने लगी। तुमने इन लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की है, मैं तुम्हें उल्टा लटकवा दूंगा। आ जाने दो मेरे बेटों को, वो भाग गए, अब नहीं आएंगे। पास्कल तो देख रहा है, तो देख प्यारे पास्कल अपने डैडी को। औरत वाविला करने वाले अंदाज में बोली। मम्मी, मैं अंधा हो चुका हूँ, यकीन करो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पास्कल भराई हुई आवाज में बोला और बूढ़ा हज़ियानी अंदाज में कह लगाने लगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बूढ़े ने कहा और औरत उसे कोसने लगी। मैंने नोटों की गड्डियां तौरात से लेकर अपनी जेबों में ठूंस ली। फिर मैंने बूढ़े को मुखातिब किया। क्या तुम देख चुके हो गैलेंट कि हमने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? इसने हमसे झूठ बोलना तुम्हारे लिए मौत के मुतरादिफ होगा, मगर कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो। बूढ़ा गिड़गिड़ाया। एक शर्त पर। हाँ हाँ बोलो। यहाँ से हमें बस्ती तक का सही रास्ता बताओ। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं बताऊंगी, यकीन करो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। औरत जल्दी से बोल पड़ी। हाँ, तुम ज्यादा काबिल एतमाद औरत हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, 2 पगडंडियां मिलेंगी। बाएं सिमत की पगडंडी पर चल पड़ना, पक्की सड़क पर पहुंच जाओगे। वहां से भी बाएं सिमत जाना है, ट्रेंडी पहुंच जाओगे। खासी बड़ी बस्ती है, वहां से तुम्हें हर जगह जाने के लिए सवारी मिल जाएगी। ओके माधम, लेकिन सफ़र कितना तवील है? तकरीबन 100 मील चलना होगा तुम्हें। तब तो आपको हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करना होगा। हाँ, क्या रास्ते में चरागाहें भी मिलेंगी? मेरा मतलब है घोड़ों के लिए। फलों के बागात भी मिलेंगे जिनमें लजीज फल झूलते हैं।
तुम उन्हीं से अपना पेट भी भर सकती हो, कैलेंट ने कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं, रास्ते में तुम्हें चरागाहें तो मिलेंगी लेकिन फल नहीं मिलेंगे। जहन्नुम में जाओ, सब कुछ लुटा दोगी, खुद भूखी मरोगी, मेरा क्या है, बूढ़े ने कहा और तौरास अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। बड़े मियाँ, यूं लगता है जैसे तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें कोई बददुआ दी है। क्यों, क्या ऐसी ही बात है? बकवास मत करो, बूढ़ा दहाड़ा, लेकिन फिर जल्द ही संभल गया। मेरा मतलब है कि जनाब कि मैं बहुत बेहाल हूँ, बराह करम मुझे न छेड़िए, उसने कहा और एन बेख्तियार हंस पड़ी। थोड़ी देर के बाद हम अपने घोड़ों पर बैठकर इन लोगों से रुखसत हो रहे थे। 3 सूरमाओं का कहीं पता ना था। रास्ते में मुझे और एन को बेख्तियार हंसी आ रही थी, लेकिन तौरास संजीदा था। काफी देर के बाद हमें उसका ख्याल आया और मैंने तौरास को देखा। फिर अपना घोड़ा उसके करीब करके बोला, तुम बहुत खामोश हो तौरास। हाँ, तुम्हारी इस दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? ये तो अफ्रीका से भी ज्यादा अजीब है, अभी तुमने देखा ही क्या है। मगर तौरास, तुम तो इसके बारे में जरूरत से ज्यादा जानने के दावे करते हो। वापस लेता हूँ अपने अल्फाज। क्यों? मैंने हंसकर पूछा। मैं इसके बारे में जरूरत से बहुत कम जानता हूँ। अब देख लो, मैं इसे इन लोगों की खातर मदारत समझा था। तौरास ने कहा और मैं बेख्तियार हंस पड़ा। एन मुझसे इन खातर मदारत की तफसील पूछने लगी और मैंने उसे बताया कि जिस वक्त हमें कॉफी पिलाकर बेहोश किया गया और हमारे हाथ पांव बांधे हुए थे, तो तौरास समझ रहा था कि ये मुहज्जब दुनिया की खातर मदारत करने का एक तरीका है। एन बेख्तियार हंसने लगी। रास्ते में हम 2 जगह रुके। एक जगह रुककर घोड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया गया और हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। दूसरी जगह फिर रुके थे ताकि घोड़े थोड़ी देर आराम कर लें। तीसरी क्यामगा ट्रेंडी की बस्ती थी। ये बस्ती एक छोटे से कस्बे पर मुश्तमिल थी, जहां से अफ्रीका के एक बड़े शहर जाने के लिए गाड़ियां मिल जाती थीं। यहाँ हमने घोड़े फरोख्त कर दिए और इनसे जो रकम मिली उसे भी हमने महफूज कर लिया। गो हमारे पास काफ़ी रकम थी। पहले हमने तय ये किया कि एक रात ट्रेंडी बस्ती में क्याम किया जाए और फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए। चुनाचे क्याम करने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश शुरू कर दी और ये जगह सरायनुमा होटल या होटल नुमा सराय थी। इस पर टोलिंटो का बोर्ड लगा हुआ था। टोलिंटो की बूढ़ी मालका भी अफ्रीकी ही थी। तौरास ने झांक कर उसे देखा और घबराए हुए लहजे में बोला, ये तो मेरी नस्ल की है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? पहले एक बात बताओ, क्या यहाँ भी खातर मदारत का वही तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा जिसे भुगत कर हम यहाँ पहुंचे हैं? मेरा ख्याल है नहीं। सोच लो और पहले से मुझे आगाह कर दो ताकि मैं लोगों से निमटने के लिए तैयार रहूं। अरे मैं तो बस धोखे में वो शराब पी गया था, लेकिन क्या ही पुरसुकून नींद थी। क्या ये शराब यहाँ भी मिलेगी? मैंने कहा ना तौरास, मुमकिन नहीं है। ये एक कारोबारी किस्म की जगह है और वो आबादी का पहला मकान था। तौरास गर्दन हिलाने लगा। मैं खामोश हो गया। बूढ़ी मालका ने हम लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, दो। उसने मायनी खेज अंदाज में पूछा और फिर एन को देखने लगी। हाँ, रिहाइश के लिए 2 कमरे दरकार हैं। गोया तो अलग अलग हो तुम लोग। क्या बकवास है, मैंने उसे घूरते हुए कहा। कुछ नहीं। दरअसल यहाँ तो हर किस्म के गाहक आते हैं। बाज एक लड़की को लेकर आती हैं और खुद 3 होते हैं। बूढ़ी औरत की बात मुझे सख्त नागवार गुजरी, लेकिन मैंने माहौल के तहत उसे नज़रअंदाज कर दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि एन कुछ नहीं समझी। तब बूढ़ी औरत ने किसी को आवाज़ दी, लोया, ए लोया, मेहमान आए हैं, इन्हें 2 कमरे दरकार हैं, ज़रा जल्दी आओ। आई मम्मी। दूर से एक नुस्वानी आवाज़ आई और तौरास उछल पड़ा। उसने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। ये आवाज़, उसने अजीब से लहजे में कहा। मैंने सदियों पहले ये आवाज़ सुनी थी। ये आवाज़ कहाँ से आई? वो बिल्कुल नौजवान है, सदियों पुराने बूढ़े, इसलिए तुमने ये आवाज़ नहीं सुनी होगी। बूढ़ी औरत ने बुरा मानकर कहा, बिल्कुल नौजवान है, ही। मगर है कहाँ? अभी तक क्यों नहीं आई? तौरास बेचैन नजर आने लगा और उसी वक्त एक स्याह फामदोशीजा ठलाती हुई अंदर आ गई, लेकिन उसका वजन 300 पाउंड से कम ना होगा। कद भी बहुत छोटा था और नक्शो निगार बेहद भद्दे। वो किसी बड़े गेंद की तरह लुढ़कती हुई आ रही थी। तौरास ने उसे देखा और उसके दोनों गाल फूल गई। ये बिल्कुल नौजवान है, उसने भराई हुई आवाज में कहा। हाँ, जानते हो इसकी उम्र क्या है? सिर्फ 19 साल, बूढ़ी औरत ने बताया। आह, काश ये 17 साल की उम्र में मर जाती। हमारे यहाँ आने से सिर्फ 2 साल कबल। वो एक ठंडी आह भर कर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ 2 साल कबल ये 19 साल की क्यों हुई? तौरास बोला। क्या बक रहे हो तुम? मेरी एक ही बच्ची है। बूढ़ी मरने मारने पर आमादा हो गई। ये एक भी होती तो क्या हर्ज था, या फिर होती तो इंसान की बच्ची होती। तौरास बसोर कर बोला और मोटी औरत खड़ी हो गई। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, समझे? वो घुरा कर बोली। अरे, इसकी बजाय तुम इसका सर फाड़ो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। तौरास ने मजलूमियत से कहा। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी, समझे? निकल जाओ तुम लोग, निकल जाओ। बूढ़ी चिरागपा हो गई।
बूढ़ी को बड़ी मुश्किल से समझाया बुझाया गया। गेंद नुमा लड़की या लड़की नुमा गेंद हमें लेकर बाहर निकल आई और फिर हमें बराबर बराबर के 2 कमरे दे दिए गए। नौजवान लड़की तोरास को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो, वो मुस्कुरा कर बोली। बताऊं अभी? तोरास उस पर उलट पड़ा और गेंद उछलकर उसे दूर हट गई। उसने हैरत से तोरास को देखा था। मैंने क्या कहा है? वो ना से बोली। कुछ करके देखो। तोरास सीने पर हाथ मारकर बोला और लड़की सहमे हुए अंदाज में खामोश हो गई। तोरास अपने कमरे में घुस चुका था। लड़की उसी जगह खड़ी कमरे के दरवाजे को घूरती रही, फिर वो वहां से चली गई। एन, मैंने हंसते हुए कहा। एन मेरे साथ ही कमरे में आ गई थी। छोटा सा एक कमरा था जिसमें एक बिस्तर लगा हुआ था। एन बिस्तर पर बैठ गई। वह भी हंस रही थी। ये शख्स यकीन करो आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका, वो हंसते हुए बोली। औरत खोर है लेकिन बदनसीब भी। वो क्या करता, उसकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी मिसाल आप है। तोरास, हाँ, खुदा की कसम इसकी हरकतों पर पेट में दर्द होने लगता है। एन बदस्तूर हंस रही थी। इस राय की मालका उससे बुरी तरह चिढ़ गई है। बहरहाल वो माँ है, अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें किस तरह सुन सकती है? लेकिन बेटी ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। हाँ, वो काफ़ी खुश इखलाक मालूम होती है। एन दिल खोलकर हंस रही थी। मुहज़्ज़ब माहौल में आ जाने की जितनी खुशी मुझे थी उतनी ही एन को होगी। मैं तो मायूस हो चुका था और यही सोच बैठा था कि अब कभी सहराए आज़म से निकलना मुमकिन ही नहीं। लेकिन तकदीर के खेल भी अनोखे होते हैं। सराय की मालका का मूड चंद नोटों ने ठीक कर दिया। फिर उसने हमें उम्दा खाना पेश किया। वो काला मुर्दार तुम्हारा मुलाजिम मालूम होता है शायद, लेकिन मुलाजमों को इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए। ओह मादाम, बराहे करम आहिस्ता। वो प्रिंस ज़ीरो का आता है, उसे आप नहीं जानती। प्रिंस, हाँ, बहुत बड़ी रियासत का मालिक है, मगर एक गुमनाम आदमी की हैसियत से सफ़र कर रहा है। यहाँ से कुछ दूर उसका बॉडीगार्ड दस्ता पड़ा हुआ है। क्या वाकई? और आपको ये जानकर हैरत ज़रूर होगी कि मैं खुद उसका मुलाजिम हूँ। बड़ा फराग दिल शहजादा है। बख्शने पर आ जाए तो रातों रात तुम्हारा ये होटल एक अजीमुशान इमारत में बदल सकता है। अरे मेरे मालिक, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो उसे बहुत बदजुबानी की है। कोई बात नहीं, बेहद फराग दिल इंसान है। मुझे यकीन है उसने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। वैसे क्या तुम उसे खाना दे आई? अभी तो नहीं। ओफो, फिर जल्दी करो, उसे बड़े एहतमाम से खाना पहुंचाओ। मुमकिन है खुश होकर तुम्हारी तकदीर बदल दे। मैंने कहा और मोटी औरत भागने की नाकाम कोशिश करती हुई बाहर निकल गई। मैं और एन खाने में मशगूल हो गई। तुम भी बड़ी फराग दिली से झूठ बोल देते हो कासिम, एन ने खाने के दौरान कहा। हाँ, एन हंसना भूल गए थे। अब ख्वामखा फितरत में एक जौलानी सी उभर आई है। वाकई यकीन नहीं आता, एन ने कहा और खाते खाते रुक गई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं कासिम, मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी थी। क्या? तुम बात के धनी हो। अगर तुम मुझे नज़रअंदाज कर देते तो मैं उसके जाल में फंसी फंसी दम तोड़ देती, एन अफसुर्दगी से बोली। ओह नहीं एन, मुझे बेइंतहा मुसरत है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो गया, जबकि मुझे खुद अपनी ही ज़िंदगी के लाले पड़े हुए थे। बहरहाल मेरी दुआ है कि तुम अपनी आइंदा ज़िंदगी कामयाब गुजारो। ज़िंदगी के किसी मरहले में अगर सेट हो जाओ तो मुझे याद रखना, मुमकिन है हम दोबारा भी मिल सकें। मैंने कहा और एन के खाने की रफ्तार सुस्त हो गई। वो खासी अफसरदा हो गई थी। हाँ कासिम, मैं वादा करती हूँ आखिरी सांस तक तुम्हें नहीं भूलूंगी। वैसे एन, तुम यहाँ से बराह रास्त लंदन जाओगी? हाँ कासिम, अगर मुमकिन हो सके तो मुझे वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। क्यों नहीं, मैंने तुमसे वादा किया है। मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। लंदन में मेरे काफ़ी अजीज़ हैं, मैं उनके दरमियान पहुँच जाऊँगी और शायद ज़िंदगी में मुझे कभी अपने मिशन को पूरा करने का मौका मिल जाए। मिशन? मैंने सवाल किया। क्या तुम उन वैश्य इंसानों को भूल गए कासिम? ओह, पहाड़ों में बसने वालों को कह रही हो? हाँ, मैं उन्हें कैसे फरामोश कर सकती हूँ। वो मेरे बाप के कातिल हैं और कुछ अरसे के बाद वो इस खूबसूरत ज़मीन के कातिल बन जाएंगे। उनके इरादे बेहद ख़तरनाक हैं कासिम। तो तुम क्या इरादा रखती हो? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी कोई बात मेरे जहन में नहीं, लेकिन अपनी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकूँगी ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अब ये अलग बात है कि दुनिया सुने या ना सुने। मेरा ख्याल है सुनेगी एन, मैंने कहा। क्या कहा जा सकता है? एन बोली। क्यों? दुनिया के रंग अजीब हैं कासिम। गो मैं एक तवील अरसे मुहज़्ज़ब दुनिया की फितरत से नावाकिफ़ हूँ, बहुत दूर रही हूँ इनसे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वहाँ मेरी जैसी किसी लड़की की बात पर तवज्जो नहीं दी जा सकती। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। क्यों? उसने सवाल किया। इसलिए कि तुम्हारे डैडी का पसे मंज़र तुम्हारी अहमियत का एहसास दिलाएगा। कौन जानता है, लोग मेरी बात को तस्लीम करें या ना करें, एन ने जवाब दिया। उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा, मजबूर तो नहीं कर सकती किसी को। और फिर मैं अपने हालात को देखूंगी, मुमकिन है मुझे इसका मौका ही ना मिल सके। सबसे पहली चीज़ तो इंसान की अपनी ज़ात है। अगर मैं खुद को किसी काबिल बना सकी तो ठीक है, वरना फिर क्या कहा जा सकता है।
हाँ तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे एक सवाल करूं कासिम, एन ने कहा। हाँ हाँ ज़रूर। क्या तुम अफ्रीका के उन स्याह फामों को भूल जाओगे जिन्होंने तुम्हारी तरफ उम्मीद की निगाहें उठाई थी? दूसरा, तुम उन मुहज़्ज़ब वैश्यों को नज़रअंदाज कर दोगे जो दुनिया को तबाह करने के ख्वाब देख रही हैं? नहीं एन, तो गोया तुम भी मेरे मिशन में शामिल रहोगे? हाँ, मैं अपने तौर पर ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन वही बात है कि जब मेरी ज़िंदगी को बेहतर रास्ता मिल जाए तब, मैंने जवाब दिया और एन गर्दन हिलाने लगी। खाना खाओ एन, तुम रुक क्यों गई? बस ऐसे ही कुछ ख्यालात जहन में आ गए थे, तुम यकीन करो जी नहीं चाह रहा, एन ने कहा। और फिर अचानक एक वहशतनाक चीख सुनाई दी और फिर मुसलसल चीखें उसी मोटी औरत की थीं। एन बेतहाशा हंस पड़ी। इस अफसरदा माहौल में उसकी हंसी कुछ अजीब महसूस हुई। फिर कुछ घपला हो गया, एन ने हंसते हुए कहा। मेरा भी यही ख्याल है, आओ देखें, मैंने कहा और हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। मोटी औरत जमीन पर औंधी पड़ी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दोनों पांव लिबादे में फंसे हुए थे और वो उठने की कोशिश में नाकाम थी, लेकिन दहशत से मुसलसल चीख रही थी। हमें देखकर वो और जोर से चीखने लगी और हम दोनों उसके करीब पहुंच गए। उसे उठाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। रेशमी लिबादे में वो हर बार फंस रही थी और हर बार औंधे मुंह जा पड़ती। बहरहाल मैंने और एन ने मिलकर उसे उठा लिया। कत्ल हो गया, प्रिंस का कत्ल हो गया। आह, उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया। अब पुलिस आएगी, हमें पकड़ कर ले जाएगी और ये होटल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। किसका कत्ल हो गया? मैंने ताज्जुब से पूछा। तुम्हारे बॉस का। जल्दी करो, जाकर देखो, मैं बेकसूर हूँ। यकीन करो मैंने अपना दिल साफ कर लिया था। खुदा के वास्ते तुम पुलिस को यह बयान मत देना कि मेरा उससे झगड़ा हुआ था। तुम्हें कैसे मालूम कि वो कत्ल हो गया है? गर्दन अलग पड़ी है उसकी, खून ही खून बिखरा हुआ है कमरे में। वो खौफजदा होकर बोली। क्या बकवास है? आओ एन, आओ तुम भी आओ, मैंने मोटी औरत से कहा और वो खौफजदा होकर बोली। माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं वो रूह फर्सा मंजर दोबारा नहीं देख सकती। मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। आओ, मैंने सख्त लहजे में कहा और एन के साथ आगे बढ़ गया। कमरे के दरवाजे में खाने की ट्रे औंधी पड़ी हुई थी। यकीनन ये मोटी औरत के हाथ से गिरी होगी। मैं उसे फलांग कर अंदर पहुंचा तो रास मसहरी पर पांव लटकाए बैठा हुआ था और दरवाजे को घूर रहा था। मैंने गहरी सांस ली। एन भी अंदर आ गई, उसके पीछे सहमी हुई औरत। लेकिन फिर अंदर का मंजर देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगी। फिर उसने आंखें मली और उसके हलक से आवाज निकली। नामुमकिन, खुदा की कसम नामुमकिन। क्या नामुमकिन? मैंने पूछा। ये जिंदा नहीं हो सकते। मैंने खुद अपनी आंखों से इनका सर अलहदा पड़ा देखा है। और ये खाना तुमने यहाँ फेंका है? मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। मेरे हाथ से गिर गया था। अंदर का मंजर इतना ही भयानक था। ये तुमसे क्या बकवास कर रही है? तो रास को राया। जाओ, प्रिंस के गुस्से को आवाज ना दो, खाना लाओ, वो भूखे होंगे, मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा और मोटी औरत कराती हुई दरवाजे के नजदीक पहुंच गई। वो बर्तन समेटने लगी और फिर वहां से चली गई। ये क्या हरकतें कर रहे हो तोरास? सारी रात यही सब कुछ करता रहूंगा, समझे तुम? आखिर इसने हथनी क्यों जन्म दी? और इस सराय में कोई खूबसूरत लड़की क्यों नहीं है? मगर वह तुम्हारे लिए खाना लाई थी, मैं खुद उसे खा जाऊंगा और फिर यहाँ मुझे सख्त खतरा है। तोरास ने कहा। कैसा खतरा? वो छोटी हथनी मुसलसल इस कमरे के चक्कर लगा रही है। अंदर आई तो हार्ट फेल हो जाएगा उसका। ओह, तो तुमने उसके लिए खेल खेला था? हाँ, इज्जत बचानी है, मैं एक नेक नफ्स इंसान हूँ। तोरास ने कहा और एन हंस पड़ी। बस कासिम, खुदा के लिए बस, अब तो हंसा भी नहीं जाता। एन ने पीठ पकड़ते हुए कहा। यहाँ से कब चलोगे? तोरास हमारी हंसी से बेनियाज था। कल सुबह। लेकिन तोरास अब बस करो, बहुत हो गई, हंगामों से क्या फ़ायदा? अगर वो छोटी मोटी यहाँ घुस आई तो नहीं आएगी, मैं उसकी माँ से मना कर दूंगा, मैंने कहा। बिल्कुल नौजवान लड़की है। तोरास ने बूढ़ी औरत की नकल उतारी। अरे, इन 19 सालों में वो एक बार भी बीमार नहीं हुई, क्या खाती रही आखिर? बूढ़ी औरत ने उसे रोका भी नहीं। तोरास बकवास करता रहा जब तक खाना ना आ गया। जब उसने खाना खा लिया तो हम उसे आराम करने की तलकीन करके बाहर निकल आए। मैंने औरत से कह दिया कि अब प्रिंस के कमरे में किसी को ना जाने दे। बकिया रात पुरसुकून गुजरी। दूसरी सुबह औरत को हमने उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा रकम दी और वह खुश हो गई। हम यहाँ से चल पड़े। उम्दा किस्म की बसें मौजूद थीं। हम ढंग के लिबासों में मुअज़्ज़ज़ लोग नजर आ रहे थे। बस में बैठकर हम चल पड़े तो रात पुरसुकून था। जिस शहर में हमें बस ने पहुंचाया वो खासा एडवांस था। बुलंदो वाली इमारतें चारों तरफ खड़ी हुई थीं। उम्दा होटल भी थे। यहाँ आने के बाद शहरी ज़रूरतों का ख्याल आया। लंदन जाने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी थे, चुनाचे सबसे पहले मैंने कुमदा से होटल का ख्याल किया। होटल पहुंचकर हमने 2 कमरे हासिल किए। एक कमरा मैंने एन को दे दिया। खुद मैंने इस बार तोरास के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि सारी रात सराय के कमरे में एन मुस्तरिब रही थी।
मेरे इस फैसले पर उसने एक निगाह मेरी तरफ देखा और फिर एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। अलबत्ता तोरास ने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। वो यहाँ आकर बहुत खुश नजर आ रहा था। हाँ चीफ, ये जगह है शानदार। मैंने ऊपर चढ़ते हुए बहुत से हसीन चेहरे देखे हैं, तोरास ने मसरूर लहजे में कहा। लेकिन तोरास, ये शहर है, इस बात का ख्याल रखना। देखो चीफ, ख्याल तो मैं हर बात का रखूंगा, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है। क्या? मैंने सवाल किया। सबसे पहले तो तुम मुझे थोड़ी देर बैठकर यहाँ के आदाब से वाकिफ कराओ। अब देखो ना चीफ, मैं मुहज्जब दुनिया की कुछ बातों से वाकिफ जरूर हूँ, लेकिन सारी बातें तो नहीं जानता, और ख़ास तौर से लड़कियों के बारे में। तो तुम लड़कियों के बारे में जानना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा मकसद है कि लोग मुझे किसी भी तौर अजनबी ना समझें, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है तोरास, मैं तुम्हें यहाँ के आदाब के बारे में बता दूंगा। इस बार तो मैं तुम्हारे साथ ही रह रहा हूँ। तुम्हारी इस चालाकी को भी मैं खूब समझता हूँ चीफ। तोरास ने एक आंख दबाते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि तुम इस बार एन से अलहदा क्यों रह रही हो। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्यों रह रहा हूँ? इसलिए कि सिर्फ एन ही तो नहीं है इस दुनिया में। जब कोई नहीं था तो वो थी, और अब दूसरे बहुत से हैं, तो एन क्या हैसियत रखती है? फजूल ख्याल है तुम्हारा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो एक शरीफ लड़की है, और मैं उसे इस निगाह से नहीं देखता। फिर खैर, तुम्हारी बातें तुम जानो, लेकिन मेरा काम तो कर दो। मसलन मैं किसी लड़की से मुलाकात करूं तो क्या बात करूं, किस तरह पेश आऊं, बस रस्मी गुफ्तगू। मसलन अगर तुम किसी से मुलाकात करो तो रस्मी बात करो, उसकी खैरियत पूछो, आपकी शादी हुई है या नहीं, अगर शादी हो गई है तो बच्चे कितने हैं, वगैरह वगैरह। बस तारुफ हासिल करने का यही जरिया है। खूब खूब, बाकी बातें मैं दूसरों की देख लूंगा। तो रास खुश होकर बोला और फिर चौंक पड़ा। चीफ, यहाँ के लोग तो बहुत उम्दा लिबास पहनते हैं। हाँ, यही बात तो मैं तुमसे कहने वाला था। कौन सी बड़ी बात है, मैं फराहम किए देता हूँ। किस तरह? ये सवाल मत किया करो मुझसे। तो रास ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तो फिर ठीक है, एन के लिए भी ज़रूरत होगी, मुझे मालूम है। तो रास ने कहा। बस मैं ज़रा एन के पास जा रहा हूँ। ओके चीफ। तो रास ने कहा और मैं बाहर निकलकर बराबर वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। एन खिड़की के पास खड़ी हुई थी, उसके शाने भी हिल रहे थे। मेरे कदमों की चाप पर उसने पलट कर देखा और फिर जल्दी से आंखें साफ करने लगी, लेकिन रोती हुई आंखें कहाँ छुपती हैं। एन, मैं भी संजीदा हो गया और वह मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या बात है एन? मैंने पूछा। कुछ नहीं कासिम, तुम रो रही हो एन? हाँ कासिम, मैं रो रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एन ने सिसकते हुए कहा। क्यों? बस कासिम, बहुत से ख्यालात जहन में आ गए थे। डैडी याद आ गए, उनसे वाबस्ता यादें जाग उठी। ना जाने क्यों कासिम, मैं अपनों को हमेशा खो देती हूँ। मैं तुमसे भी तो मानूस हो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं कासिम, बराह करम यह सवाल मत करो। बस यकीन करो, मैं तुम्हें मुतासिर करना नहीं चाहती। मैं किसी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, समझे कासिम, ये मेरा अहद है। मैं तुम्हारी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है और मेरा मिशन कुछ और। नहीं कासिम, यकीन करो, मेरे ज़हन के किसी गोशे में यह ख्याल नहीं है। तुम इसकी पेशकश भी करोगे तो मैं नामंजूर कर दूंगी। बहरहाल एन, मैं तुम्हारे लिए अफसुर्दा हूँ, और अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे इसके बारे में ज़रूर बताओगी। हाँ यकीनन, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पेश आई तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन इस वक्त इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू ना करो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। ठीक है, मैंने किसी कदर अफसुर्दगी से कहा, और फिर उसकी जानिब देखकर बोला, लेकिन एन, मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ भी तो नहीं सकता। क्या मतलब? मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाओ, हम थोड़ी सी तफरी करेंगे। कहाँ? यहीं इसी शहर में, इस बस्ती में, या फिर किसी होटल के डाइनिंग हॉल में। ओह कासिम, कपड़े खासे ख़राब हो गए हैं, उसने अटक अटक कर कहा। हाँ, उस काले नाग ने कहा तो है कि वो हमारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर देगा। काला नाग हाजिर है। दरवाजे से आवाज़ आई और हम दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे तो रास अंदर आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था जो खासा वजनी मालूम होता था। उसने सूटकेस को झटका दिया और सूटकेस खुल गया। उसमें से बेशुमार मलबूसात निकलकर ज़मीन पर बिखर गए। इनमें जनाने कपड़े भी थे और मर्दाने भी। मैंने गहरी सांस ली। तो रास की कुर्बत इस जदीद दुनिया में बड़ी अजीब महसूस हुई। तब हमने कपड़े उठाकर देखे और मैंने मज़ाक़ेज़ अंदाज में कहा, तो ए काले नाग, क्या ये लिबास हमारे जिस्मों पर सही भी आएंगे या नहीं, या इन्हें पहनकर हम किसी कदीम दौर के इंसान मालूम होंगे? पहनकर देखो, पहनकर। तो रास ने एक लिबास अपने लिए निकालते हुए कहा। एन भी रोना धोना छोड़कर सूटकेस से गिरे हुए कपड़ों में दिलचस्पी लेने लगी। फिर उसने अपने साइज के कपड़े निकालकर अलग कर लिए और उन्हें अपने जिस्म से लगाकर देखने लगी। ओह मेरे खुदा, बिल्कुल ठीक हैं।
वो मुतहय्यराना अंदाज में बोली। यूं लगता है जैसे तौरास किसी ज़माने में दर्जी रह चुका है। मैंने हंसते हुए कहा। दर्जी, ये क्या चीज़ होती है, जल्दी बताओ, तौरास ने सवाल किया। बहुत अच्छी चीज़ होती है, तुम फिक्र मत करो। देखो, गालियाँ देने की नहीं हो रही, यकीन करो गाली नहीं है। दर्जी उसे कहते हैं जो जिस्म पर पहनने वाले कपड़े सीता है। ओह, हमने कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने, तौरास ने कहा और बाहर निकल गया। चंद साथ के बाद हम दोनों भी तैयार होकर बाहर निकल आए। तौरास के कमरे की तरफ देखा तो वो बंद था। आओ, वो अपने तौर पर तफरीहात करेगा, मैंने एन से कहा और उसका हाथ पकड़ते हुए चल दिया। वैसे मुझे एक बात की खुशी है कासिम, तुम्हें यह शख्स खूब मिल गया। अफ्रीकी जादूगर हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक है, लेकिन क्या तुम इसे अपने काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते कासिम? क्या मतलब? मेरा मतलब है उस मिशन के लिए जो हमारे जहनों में है। नहीं एन, अव्वल तो वो इसके लिए तैयार नहीं है, दूसरी बात यह कि मैं खुद भी अभी तक मुतजलजल हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस मसले में टांग अड़ाऊँ या ना अड़ाऊँ। हमारे वसाइल हमें इसकी इजाज़त कहाँ देते हैं। नहीं कासिम, मुझे इस बात पर तुमसे इख्तलाफ है, एन ने कहा। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ चलें, मैंने कहा और हम दोनों नीचे उतर आए। तौरास डाइनिंग हॉल के कोने में नजर आ रहा था। जो लिबास उसने पहना हुआ था वाकई उस पर बहुत जच रहा था। यूं भी वो एक सडोल और वर्जिशी जिस्म का मालिक था, बस रंग और नक्शो निगार से मार खा गया। बहरहाल यहाँ और भी लोग थे, लेकिन वह मुख्तलिफ नजर आ रहा था। इसको बस एक ही शौक है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। क्या? एन ने पूछा। लड़कियां, मैंने जवाब दिया। लेकिन मुझे एक बात पर हैरत है, उसने अपने आप को इस माहौल में बआसानी जम कर लिया है। ज़रा भी अजनबी नहीं लगता और ताज्जुब है, ये अंग्रेज़ी खूब बोल लेता है। हाँ एन, वो अजीब है, मैंने स्याह पत्थर को टटोलते हुए कहा और दूर बैठे हुए तौरास ने निगाह उठाकर मुझे देखा। इस पत्थर से उसके ताल्लुक पर मुझे बाज़ औक़ात सख्त हैरत होती। बहरहाल मैं इत्मीनान से बैठ गया। यहाँ से तुम मेरे साथ लंदन चलोगे कासिम? एन ने पूछा। क्यों नहीं, वहाँ तुम क्याम करोगे? हाँ, क्याम भी करूँगा, लेकिन मैं लंदन एयरपोर्ट पर तुमसे जुदा हो जाऊंगी। इसकी वजह नहीं बताओगी? नहीं, एन ने कहा और मैं खामोश हो गया। मैं इस लड़की की जहनी कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ था। मैं और एन गुफ्तगू करते रहे और थोड़ी देर के बाद हम माहौल से बेखबर हो गए। फिर अचानक मेरी निगाह तौरास की तरफ उठ गई और इसके साथ ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। एन ज़रा देखो, मैंने एन को उसकी जानिब मुतवज्जा किया और एन भी मुस्कुराने लगी। एक खूबसूरत सी लड़की तौरास की मेज़ पर बैठी थी और तौरास की हालत ख़राब थी। फिर अचानक लड़की ने एक गिलास उठाया और तौरास पर खींच मारा। अरे, मेरे मुंह से निकला। लड़की कुर्सी खिसका कर खड़ी हो गई। वो तौरास को बुरा भला कह रही थी और तौरास बौखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। कर बैठा कोई गड़बड़, आओ, मैंने एन से कहा और तेजी से उस तरफ बढ़ गया। दूसरे लोग भी इस तरफ मुतवज्जा हो गए। मगर बात क्या हुई जॉन्स? तौरास हकला हकला कर पूछ रहा था। तुम जलील हो? लड़की घुर्राई। मगर क्यों? क्या समझा था तुमने मुझे? मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ। ओह जेनी, तुम यहाँ फिर आ गई। मैंने तौरास को नज़रअंदाज करके लड़की के दोनों शाने पकड़ लिए और वो बिफर कर पलटी। मेरा नाम जॉन्स है मिस्टर। अच्छा, चलो घर चलो। कितनी बार कहा है तन्हा बाहर मत जाया करो। चलो घर चलो, तुम पागल हो। लड़की ने खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश की। उसी वक्त एक मेज से 4 नौजवान आदमी उठ खड़े हुए। वो सफ़ेद फार्म थे। ज़रूर इस कालेनीन खातून की तौहीन की है, उनमें से एक ने खतरनाक लहजे में कहा। वो उन लोगों में से मालूम होते थे जो ख्वामख्वाह लड़कियों की इमदाद करके उनसे दोस्ती के ख्वाहा होते हैं। बराह करम आप लोग अपनी मेज़ पर बैठें, कोई बात नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम कौन हो? इसने खातून की बेइज्जती की है और तुम उसकी हमायत कर रहे हो। उनमें से दूसरा आदमी बोला। ओह, ये लड़की पागल है, ऐसी ही हरकतें करती है, आप आराम से बैठें। मुझे यकीन है कि इस शख्स ने इससे कुछ नहीं कहा। यह हर जगह ऐसी हरकतें करती है। ओह, तुम बकवास मत करो। मैं? लड़की मुझ पर बरस पड़ी और मैं उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। वो लोग मेरे साथ चले तो मैंने उन्हें डांट दिया। वो मेरी साथी है, मेरी दोस्त की बहन, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूँ। तुम लोग बैठो। इस बार मेरा लहजा इतना सख्त था कि वो रुक गए। फिर जो कुछ मैंने किया था उसके बाद उनकी हमायत की ज़रूरत नहीं रह जाती थी। मैं लड़की को घसीटता हुआ बाहर ले आया। वो बुरी तरह मचल रही थी। एन मेरे पीछे पीछे थी। मैं तुम्हें भी देख लूँगी, लड़की गुर्राई। मैं उसे बाहर लाया और फिर मैंने उसे एक ज़ोरदार धक्का देकर कहा, अच्छी तरह देख लेना बेवकूफ़ औरत, तू नहीं जानती वो कौन है? कौन है? जिसके साथ तू बदतमीजी से पेश आ रही थी वो अफ्रीकी शहजादा है और यहाँ उसके इतने हमायती मौजूद हैं कि अगर एक एक गोली चलाएं तो तुम्हारा पूरा बदन सुराखों से भर जाए। मेरे लहजे में इस कदर दरिंदगी थी कि लड़की एक लम्हे के लिए झिझक गई। उसने नफरत अंगेज निगाहों से मुझे देखा और गुस्से से गर्दन झटक कर एक तरफ चली गई।
चंद साथ के बाद उसकी कार होटल के कंपाउंड से निकल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और एन के नज़दीक आ गया। एन खासी परेशान नजर आ रही थी। मुझे देखकर उसने गहरी सांस ली और बोली, टल गई भला? हाँ, लेकिन हुआ क्या था? क्या पता, जाहिर है तोरास जहाँ होगा वहाँ इन बातों के अलावा क्या होगा। तुम्हें बूढ़ी औरत की बातें याद नहीं? याद हैं। एन ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई, फिर बोली, लेकिन तुम बेहद चालाक इंसान हो। तुमने उसे क्या कहा था? दूसरे लोगों को तुमने ठंडा कर दिया, वरना मामला खासा बढ़ जाता। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, मेरा ख्याल है कासिम, हमें यहाँ से सीधा अपने कमरे में चलना चाहिए। हाँ, यही बेहतर है, मैंने जवाब दिया। लेकिन वो वहीं बैठा होगा। अब बैठा होगा तो भुगतेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, एन बोली। क्या? मैं उसके साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ बोला, ये तोरास जब इतना बड़ा जादूगर है तो बाज मामलात में इतना बेबस बन जाता है। उस वक्त इसकी जादूगरी कहाँ चली जाती है जब कोई मसला इसे घेर लेता है। खुदा ही बेहतर जाने एन, अब मैं क्या समझ सकता हूँ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। और चंद साथ के बाद हम अपने फ्लोर की गैलरी में पहुंच गए। मैंने देखा कि तोरास के कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, गोया वो भी हॉल से वापस आ गया था। अब हम दोनों भी इस कमरे में घुस गए। तोरास की शक्ल बिगड़ी हुई थी। मुझे देखकर उसने बुरा समूह बनाया और घूंसा दिखाते हुए गुस्सीले अंदाज में बोला, निमट लूंगा तुमसे भी, किसी मौका पर निमट लूंगा। अरे अरे, मुझसे क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारी जान बचा दी, वरना वो सब मिलकर तुम्हें इतना मारते कि तुम्हारी शक्ल ही बिगड़ जाती। मारते, जान बचा दी। हुआ क्या था डियर तोरास? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ बुरा सलूक कर रही हो, तोरास ने बदस्तूर गुस्सीले लहजे में कहा। आखिर क्या बुरा सलूक किया मैंने? तुमने मुझे अपनी दुनिया में लाकर मेरी बेइज्जती कराने का फैसला कर लिया है। हरगिज नहीं तोरास, लेकिन जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगे मैं क्या कह सकता हूँ? अरे तुमने मुझे नहीं बताया था कि मुअज़्ज़ज़ और मुहज़्ज़ब ख़वातीन से कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए। मैंने? हाँ, बताया तो था। तो मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। लेकिन वो लड़की बिगड़ गई तब तो फिर वो वाकई पागल मालूम होती थी। क्या कहा था तुमने उससे? मैंने पूछा। बस सामने की मेज़ पर बैठी हुई थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और वो उठकर मेरी मेज़ पर आ गई। फिर बोली कि बोरियत का शिकार है, अपने एक दोस्त से मिलने आई थी लेकिन वो नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैं उसका दुश्मन तो नहीं हूँ। वह मुस्कुराने लगी। फिर बोली कि वो एक बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की फ़र्द है, उसे गलत ना समझा जाए। मैंने कहा, बिल्कुल गलत नहीं समझूंगा। फिर मैंने तुम्हारी बताई गुफ्तगू शुरू कर दी। ओह, वो किस तरह? मैंने हंसकर पूछा। बस मैंने उससे पूछा कि मौसम कैसा है तो वो बोली कि बहुत सर्द। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि शादी हुई है उसकी, तो उसने जवाब दिया कि नहीं। ये भी ठीक है, मैंने गर्दन हिलाई। खाक ठीक है, अगर ठीक है तो वो बिगड़ क्यों गई? इसके बाद कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बस आखिरी सवाल किया था मैंने कहा अगर शादी नहीं हुई तो बच्चे कितने हैं? और इसके बाद वो हत्थे से उखड़ गई। फिर उसने कोई बात भी नहीं सुनी और मरने मारने पर आमादा हो गई। इसके जवाब में कि शादी नहीं हुई, तुमने उससे उसके बच्चों की तादाद पूछी? मैंने सवाल किया और तोरास ने मासूमियत से गर्दन हिला दी। एन का फलक शगाफ कह कहा गूंजा और मैं भी बेतहाशा हंस रहा था। तोरास हम लोगों को घूर रहा था। हमारी हंसी रोके न रुक रही थी और एन की आंखों से हंसी के मारे आंसू बह रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम संभले और मैं तोरास को उसकी गुफ्तगू की खराबी बताने लगा। तो इसमें मेरा क्या कसूर? तीसरा सवाल तो करने ही था। तोरास बेचारगी से बोला और फिर कहने लगा, नहीं, हरगिज नहीं। अब मैं इतना अहमक भी नहीं हूँ। मुहज़्ज़ब बनने की कोशिश में गधा ही बन जाता हूँ। आइंदा ऐसी तहजीब पर लानत। मेरा पुराना असूल ही बेहतर है। पुराना असूल क्या है? एक लफ्ज़ नहीं बताऊंगा, बस कह दिया एक दफ़ा। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है। मैं और एन देर तक इस लतीफ़े से महफूज होते रहे। फिर एन को नींद आने लगी और मैं उसे उसके कमरे तक छोड़ने आया। जब वापस पलटा तो तोरास बिस्तर में घुसा सो रहा था। मैं भी लेट गया। इस होटल में हमें एक हफ्ता क्याम करना पड़ा। तोरास के लतीफ़े जारी थे लेकिन वो काम में मसरूफ़ था। भारी रकम देकर हमने गैर कानूनी तौर पर एक गिरोह से अपने लिए पासपोर्ट हासिल किए और लंदन के वीज़े वगैरह लगवाने में कई दिन सरफ हो गए। तोरास ना जाने क्यों इन दिनों मोहतात रहा। एक हफ्ता के बाद हम लंदन के लिए तैयार थे। मैंने इसका ऐलान कर दिया और दूसरे दिन की सीटें ओके करवा ली। एयरपोर्ट पहुंचकर जब हम जहाज़ में सवार होने लगे तो एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस ने हमें हमारी सीटें बताईं। लेकिन उसी वक्त तोरास आगे बढ़ा। आह जॉन्स, माय डियर जॉन्स, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। तोरास आगे बढ़कर एयर होस्टेस से लिपट गया। जॉन्स, मेरी प्यारी जॉन्स, वो वालिहाना अंदाज में कह रहा था। ओह मिस्टर, आपको गलत फहमी हुई है। मेरा नाम पीटर है, मैं जॉन्स नहीं हूँ। हॉस्टेस ने मुश्किल खुद को उससे छुड़ाया और तोरास की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम जॉन्स नहीं हो, वो गमज़दा लहजे में बोला। चंद साथ हॉस्टेस को घूरता रहा। फिर उसके चेहरे पर सख्त शर्मिंदगी के आसार नजर आने लगे। मैं शर्मिंदा हूँ।
उसने गलूगीर लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने हॉस्टेस को बेहद मुतासिर किया। वो नाराजगी का इजहार भी ना कर सकी। तोरास गर्दन झुकाए सीट की तरफ बढ़ गया। हम दोनों भी उसकी अकबी सीट पर थे। एन एक बार फिर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर ये तैयारा फिजा में परवाज कर गया तो एन ने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, बड़े खतरनाक इकदामात होते हैं इसके। हाँ, मार खाएगा किसी वक्त किसी से, मैंने कहा और एन हंसने लगी। तोरास खामोश गर्दन झुकाए बैठा था। बदकिस्मती से उसके नज़दीक एक उधेड़ उम्र का मर्द बैठा हुआ था जो अपनी सीट से टिककर ऊँघने लगा था। तोरास ने कई बार उसे देखा और मुझे महसूस हुआ कि उसके जहन में कोई शरारत कुलबुला रही है, लेकिन तैयारे के अंदर कोई शरारत नुकसानदेह भी हो सकती थी। चुनाचे मैं सीट पर झुक गया। तोरास, मैंने उसे आहिस्ता से मुखातिब किया और उसने अपना कान मेरी जानिब कर दिया। कहो, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, तुम इस सफ़र में बिल्कुल पुरसुकून रहोगे, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम खुद पुरसुकून हो ना, इसलिए ये बात कह रही हो, उसने भारी लहजे में कहा। हॉस्टेस कई बार इस तरफ से गुजर चुकी थी, लेकिन तोरास ने एक बार भी निगाह उठाकर नहीं देखा। मुझे इस बात पर हैरत थी। अलबत्ता मैंने महसूस किया कि एयर हॉस्टेस खास तौर से उसकी जानिब मुतवज्जा है। फिर उसने एक बार तोरास के करीब झुककर कुछ कहा और तोरास ने गामालूद आंखें उठाकर उसे देखा और फिर गर्दन झुका ली। हॉस्टेस मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। फिर हम दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे हॉस्टेस उसे एक मासूम बच्चे की मानंद समझ रही है और फिर उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही हो। तोरास ने एक गुर आजमाया था और इसमें कामयाब रहा। बिलाखिर हम लंदन पहुंच गए। सफ़र के दौरान दिलचस्प वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन तोरास ने वाकई कोई हरकत नहीं की जिसकी बिना पर कोई तकलीफदेह सूरत हाल पैदा होती। लंदन एयरपोर्ट कोहर में डूबा हुआ था, लेकिन इसकी रौनक हस्बे मामूल थी। मैंने कितनी ही बार इस मुल्क के बारे में सोचा जिस वक्त मैं अपने मुल्क में था और दौलत हासिल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ था, और फिर दौलत के हसूल के बाद मैंने जो प्रोग्राम बनाए उसमें लंदन सरे फहरिस्त था। लंदन की हसीन दास्तानें मेरे कानों तक पहुंची थी और मेरे दिल में से देखने की ख्वाहिश थी। आज इस ख्वाहिश की तकमील इस तरह हो गई। बाहर सूरत मेरे जज्बात में वो पहली जैसी उमंगें नहीं थी, बस एक ठहराव सा था। ताहम इस शहर के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुझे खुशी हुई, लेकिन मैंने एन को मजीद मुस्तरिब देखा। हम सब जहाज़ की सीढ़ियों से उतरकर कस्टम हाउस पहुंच गए और वहां पर इंतजार गाह में रुक गए। एन गर्दन झुकाए हुए थी, उसकी आंखों की नमी साफ महसूस हो रही थी और इत्तफाक की बात थी कि उसका सामान कुछ पहले क्लियर हो गया। एक स्टीवर्ड ट्राली लेकर एन के नज़दीक पहुंच गया और उसने एन का सामान उसके हवाले कर दिया। एन ने मेरी जानिब देखा। मुझे इजाज़त दो कासिम, ये कहते हुए उसकी आवाज़ लरज रही थी। मैं खुद थोड़ा सा मुस्तरिब हो गया। इतनी जल्दी एन, थोड़ा सा इंतज़ार करो, हम लोग भी अभी बाहर चलते हैं, मैंने कहा। नहीं कासिम, मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं एयरपोर्ट पर ही तुमसे रुखसत हो जाऊंगी, एन ने अपने तासुरात छुपाते हुए कहा। ऐसी भी क्या जल्दी है एन, मैंने किसी कदर दुख महसूस करते हुए कहा। कासिम प्लीज़, मुझे अपनी बात पर डटे रहने का मौका दो, मेरी मदद करो कासिम। उसके मुंह से सिसकियां सी खारिज होने लगीं। तब मैंने गर्दन हिलाई और उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला, खुदा हाफिज एन, हमने जो वक्त गुजारा है वो कभी ना भूलने के लिए है, ताहम हम उसे भूल जाएंगे। खुदा हाफिज, एन बोली और अपने आंसू छुपाती हुई वापसी के लिए मुड़ गई। नोटों की गड्डियां मैंने एन के लिबास में पहले ही महफूज कर दी थी और मुझे यकीन था कि इस रकम के जरिए वो कम अज़ कम थोड़े दिनों तक माली परेशानियों का शिकार नहीं होगी और अपने अजीज़ों को तलाश कर लेगी। उसके जाने के बाद तोरास बोला, ये चली क्यों गई आखिर, क्या मतलब, मैंने खुद को संभाल कर पूछा। मेरा मतलब है जब तुम दोनों इतने करीब थे तो इसे जाने की क्या ज़रूरत थी, साथ भी रह सकती थी। और फिर तुम्हारा कहना है कि उसका कोई भी नहीं। हम इसके बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे तोरास, मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। आखिर क्यों, बस उसूल असूल होते हैं। मैं उसे ज़िंदगी का साथी नहीं बना सकता, चुनाचे उसकी ज़िंदगी से खेलने का हक भी नहीं है मुझे। अनोखे असूल होते हैं तुम मुहज़्ज़ब लोगों के, मुझे तो इनका कोई मकसद भी नज़र नहीं आता। मैंने कहा ना, अब खामोशी इख्तियार करो। तो फिर यहाँ खड़े क्यों हो, सामान तो आ जाए हमारा, मैं झिल्ला कर बोला। सामान सामान, लो आ गया सामान, अब तो चलो। तोरास ने अकब में इशारा किया और मैंने बेख्तियार पलट कर देखा। हमारा सूटकेस पीछे रखा था। ओ बेवकूफ़, ये क्या किया तूने? क्यों, तुम इसके लिए रुके हुए थे ना? हाँ, लेकिन बगैर चेकिंग कराए, इसे ले जाना जुर्म है। मैं चारों तरफ देखकर बोला, अब ये जुर्म तो हो ही गया, चलो। तोरास ने कहा और झुककर सूटकेस उठा लिया। हम दोनों बाहर निकल आए। हमें मिड ईस्ट में ठहरना है। क्या मतलब, होटल मिड ईस्ट? तोरास बोला। खूब, तुम उसके बारे में जानते हो? कुछ नहीं जानता, लेकिन ये कोई होटल ज़रूर होगा। तोरास मुस्कुरा कर बोला और मैंने एक टैक्सी को इशारा किया। टैक्सी ड्राइवर ने हमारा सामान रखा और हम अंदर बैठ गए।
होटल मिड ईस्ट, तोरास जल्दी से बोला और ड्राइवर ने गर्दन हिलाकर टैक्सी आगे बढ़ा दी। एन के चले जाने से थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरे हक में बेहतर है। चंद जज्बाती बातों की वजह से बकिया ज़िंदगी खराब भी हो जाए क्या फ़ायदा। आधी ज़िंदगी तो अफ्रीका में तबाह हो चुकी थी, इसलिए जल्द ही खुद को संभाल लिया। लेकिन मिड ईस्ट अब भी मेरे जहन में चकरा रहा था और थोड़ी देर के बाद टैक्सी एक बुलंदोबाला इमारत के सामने कंपाउंड में दाखिल हो गई। पोर्टर ने हमारा सामान निकाला और मैं टैक्सी का बिल अदा करके चल पड़ा। चंद साथ के बाद हम एक कुशादा और खूबसूरत कमरे में थे। तोरास इस हसीन माहौल को देखकर बहुत खुश था। वाह, उम्दा जगह है चीफ, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसका नाम किस तरह मालूम हुआ? ज़रूरी है क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है। बस चीफ, इस बार काम बन गया, तोरास चुटकी बजाकर बोला और आंखें बंद करके हंसने लगा। मैं उसे घूर रहा था। फिर मैंने बेजारी से शाने हिलाए और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। पूछोगे नहीं चीफ के क्या हुआ? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वो जो मेरी जॉन्स थी ना, मेरा मतलब है जो बाद में पीटरा निकली, वो इसी होटल में काम करेगी, उसने मुझे बताया था। ओह, ये बात है। क्या कहा था उसने? कहा था मिड ईस्ट में रूम नंबर 118 में मुझसे मुलाकात करना। जब ही तो मैं खामोश हो गया, वरना रोता ही रहता। बड़े मक्कार इंसान हो तोरास। इंसान नहीं, देवता कहो चीफ, वैसे तुम्हारी दुनिया को समझता जा रहा हूँ, तोरास ने कहा और मैं हंसता हुआ बाथरूम में चला गया। तोरास की मौजूदगी में किसी किस्म की तकलीफ का तो सवाल ही नहीं था। उसने लिबास के ढेर लगा दिए। इस माहौल में वो बेहद खुश था। इसी शाम को उसने बेहतरीन लिबास तब्दील किया और तैयार होकर मेरी तरफ देखने लगा। फिर शर्माए हुए अंदाज में बोला, जाऊं चीफ? कहाँ? मैंने पूछा। बात मेरे जहन से उतर गई थी। रूम नंबर 118, उसने कहा और शर्मा कर दोहरा हो गया। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई और फिर हंसता हुआ बाहर निकल गया। ना जाने कम वक्त क्या हरकतें करता फिरेगा, मैंने सोचा। फिल वक्त मेरा बाहर जाने का कोई इरादा ना था, चुनाचे मैं एक आरामदेह कुर्सी पर दराज हो गया। वो छोटा सा पत्थर मेरी जेब में मौजूद था, जिसकी हिफाजत इंतहाई ज़रूरी थी, क्योंकि मैं तोरास जैसे बेहतरीन साथी को खोना नहीं चाहता था। एक बार वो पत्थर मेरे लिबास से निकल गया था और इसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब जान से ज़्यादा इसकी हिफाजत करूँगा, वरना तोरास के बगैर बहुत सारे मसाइल अधूरे ही रह जाएंगे। मैंने पत्थर निकालकर अपने नज़दीक रख लिया और अचानक मुझे पत्थर से हल्की हल्की आवाज़ें उठती हुई महसूस हुई। मैंने इसे चेहरे के नज़दीक कर लिया। इससे कबल भी मैंने कुछ ऐसी ही कैफियत महसूस की थी, यानी जब मैंने तोरास को आवाज़ देने की कोशिश की थी तो पत्थर से सरगोशियाँ सुनाई दी थी। इस वक्त भी तोरास की आवाज़ आ रही थी। मैं इस पर गौर करने लगा। वो जनाब, रूम नंबर 118 कहाँ मिलेगा? वो किसी से पूछ रहा था। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इस अजीबोगरीब पत्थर की ये खुसूसियात आज से कबल इतने अच्छे तरीके से मेरे सामने नहीं आई थी, और शायद तोरास ने ख़ास तौर पर यह बात मुझे नहीं बताई थी। रूम नंबर 118 थर्ड फ्लोर पर है, किसी शख्स ने जवाब दिया। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बोला, ये थर्ड फ्लोर कहाँ मिलेगा? इस बात का जवाब नहीं मिला। जाहिर है जिस शख्स से यह सवाल पूछा गया होगा उसने इस बात को मजाक समझा होगा और इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया होगा। तोरास की बुड़बुड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। वाह भाई वाह, अजीब लोग हैं। एक सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाहर सूरत। मैं दिलचस्पी से सुनता रहा, यहाँ तक कि तोरास थर्ड फ्लोर तक पहुँच गया और दरवाजे पर भी दस्तक सुनाई दी। गालिबन वो अपनी मंजिल पर पहुँच गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक नुस्वानी आवाज़, ओह तुम, अंदर आ जाओ। शुक्रिया खातून, मुझे एहसास है कि मैंने आपकी तौहीन की थी। मैं आपसे मुआफ़ी मांगने के लिए बेचैन था। अरे नहीं, वो एक पब्लिक मुकाम था और मैं ड्यूटी पर थी। लेकिन तुम बेख्तियार क्यों हो गए थे? बस आप मुझे मुआफ़ कर दें। ओह नहीं डियर, मुआफ़ी की बात नहीं, मुझे तो खुद बहुत दुख हुआ था। बैठो, तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? कुछ नहीं, तोरास की भारी आवाज़ उभरी। मैंने कहा ना, शर्मिंदगी के एहसास को मिटा दो। मैंने तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खुद ही मंगवाती हूँ। फिर घंटी बजाई गई और इसके बाद वेटर को लाइम कोक लाने का कह दिया गया। हाँ, अब तुम मुझे अपनी जॉन्स के बारे में बताओ। तुम्हारा क्या नाम है? तोरास। ऐसा ही हो? हाँ। तोरास ने यकीनन इस सवाल का जवाब बगैर सोचे समझे दिया। नाम अजीब है। हाँ तो जॉन्स मेरी महबूबा थी, कहाँ गई? बस गुम हो गई, ना जाने कहाँ। वो मासूमियत से बोली। किस तरह गुम हो गई? मुझे उसकी पूरी कहानी सुनाओ। मुझे नहीं मालूम, यकीन करो मैं नहीं जानता। वो कहाँ चली गई, क्यों चली गई? बस वो मुझे मिली थी। उसने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत के कोई ना करता होगा। लेकिन फिर वो चली गई मुझे बताए बगैर, और फिर वो कभी नहीं मिली। ओह मुझे अफसोस है। लेकिन तुम भी उसे भूल जाओ। बेवफा लोगों को भूल जाना ही अच्छा होता है। भूल गया था, मगर उसे याद दिला दिया।
मुझे अफसोस है, मैं 3 दिन यहाँ रहूंगी। इस दौरान तुम मेरे साथ रह सकते हो। क्या करते हो? बस सैरो सियाहत, तोरास ने जवाब दिया। मेरा मतलब है ज़राए आमदनी क्या है? कुछ नहीं, मैं छोटी सी अफ्रीकी रियासत का शहजादा हूँ, तोरास ने मासूमियत से कहा। और यकीनन एयर होस्टेस पर उसका यह जवाब असरअंदाज हुआ होगा। ओह, इसका मतलब है कि तुम मामूली इंसान नहीं हो। क्या मतलब? तोरास ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन क्या तुम बाकायदगी से सफ़र कर रही हो? मेरा मतलब है, क्या हुकूमत को तुम्हारी आमद का इल्म है? नहीं, मैंने इजाज़त ले ली है कि मैं खामोशी से सैरो सियाहत करूं। बड़ा चाहते हैं मुझे मेरे घर के लोग, चुनाचे हर जगह मुझे बेहतर सहूलतें फराहम कर दी जाती हैं। क्याम कहाँ है तुम्हारा? इसी होटल में। तुमने बताया था कि तुम मिड ईस्ट में क्याम करोगी, इसीलिए मैंने भी यही कमरा हासिल किया। ओह, बहुत खूब। तन्हा हो? उसने पूछा। नहीं, मेरा एक साथी मेरे साथ है। खूब, तुम्हारा मुलाजिम होगा? नहीं, दोस्त है। मुझे उससे मिलाना। बड़ी खुशी हुई है तुमसे मिलकर। आज तुम मेरे साथ ही रहो। तुम्हारे साथी को एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, तोरास ने कहा और मैंने एक गहरी सांस ली। हॉस्टेस तो अब इस शहजादे को छोड़ेगी नहीं, और वो अपनी शहजादगी निभा भी सकता है। हॉस्टेस के मुंह से जो निकलेगा वो उसे फराहम कर देगा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के बाद मैं तैयार होकर नीचे उतर आया। मिड ईस्ट का डाइनिंग हॉल बेहद दिलकश था। बेशुमार अफराद मेज़ों पर मौजूद थे। हल्की मौसीकी उभर रही थी। एक वेटर ने मेज़ की जानिब मेरी रहनुमाई की और मैं बैठ गया। मैंने एक मशरूब तलब कर लिया। अब मैंने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अफ्रीका के वीराने से निजात मिल गई थी। अपने वतन जाऊं या सियाहत करूं? मेरी ज़हनी कैफियत अजीब हो गई। फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि ज़िंदगी का आइंदा लाहे अमल क्या मुतय्यन करूं। रक्स के लिए मौसीकी शुरू हो गई और जोड़े चौबी फरश की तरफ चल पड़े। मैं इन लोगों को रक्स करते देखता रहा। ना जाने क्यों खुद को इस दुनिया में तन्हा महसूस कर रहा था। बस एक घुटन सी थी। दिल बहुत घबराया तो वहां से भी उठाया और होटल से बाहर निकल आया। सड़कें जगमगा रही थीं। चारों तरफ रोशनियों का सैलाब छाया हुआ था। देर तक सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा और फिर एक जगह रुक गया। तब पहली बार एहसास हुआ कि कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है। उस शख्स को मैंने मिड ईस्ट में देखा था। लंबा कोट पहने हुए वो मुसलसल मेरे पीछे चलता रहा। क्या यह सिर्फ वहम है? मैंने सोचा, और इस बात की हकीकत जानने के लिए मैं फिर आगे बढ़ गया। वो शख्स बराबर मेरे पीछे चल रहा था और मुझे ये यकीन हो गया कि वो मेरा ताक़ुब कर रहा है। लेकिन क्यों? कौन है? और किस गलत फहमी का शिकार है? फिर मैं उसे काफ़ी दूर तक घुमाता रहा। वो बदस्तूर मेरे पीछे लगा हुआ था। ज़रूर कोई ख़ास बात है, लेकिन क्या ये फैसला करना मुश्किल था। फिर मैं वापस चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद अपने होटल में दाखिल हो गया। जब मैं ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुआ तो वो तेज़ी से दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। गोया बड़ी बाकायदगी से मेरा ताक़ुब हो रहा था। मैं कमरे में आ गया। ज़हनी उदासी किसी हद तक दूर हो गई और मैं इस शख्स में उलझ गया। आखिर कौन है? थोड़ी देर तक तो मैं यही सोचता रहा। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और एकदम दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन राहदारी सुनसान पड़ी थी। ताक़ुब करने वाला वापस जा चुका था। मैं देर तक इसी तरह खड़ा रहा और फिर दरवाज़ा बंद करके वापस पलट आया। लिबास तब्दील करके बिस्तर पर लेट गया। पत्थर मैंने अपने सरहाने रख दिया था। फिर ख्याल आया कि तोरास को तो देखूं और मैंने पत्थर निकाल कर सीने पर रख लिया। तोरास की आवाज़ें उभर रही थीं, लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें थीं कि मैंने जल्दी से पत्थर वापस उसकी जगह रख दिया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।